Morning, everyone. We will start with the new chapter today, underwriting of shares and debentures. Underwriting of shares and debentures. So now first let us understand what does underwriting mean. So underwriting, according to SEBI's regulations. So according to Securities Exchange Board of India, that is SEBI, who regulates who controls the capital market, according to SEBI's regulation rules, underwriting means an agreement with or without conditions to subscribe to purchase the securities of a body corporate of a company when the existing shareholders of such company body corporate or the public do not subscribe to the securities offered to them. That this means underwriting, the role of the underwriter arises when the shares of the securities include both shares and debentures. They say that when the existing shareholders and the public do not subscribe, do not purchase the company's securities, then that securities are subscribed, purchased by the underwriter, and this is the agreement which includes the clause that includes the condition that the underwriter will subscribe, will purchase the securities of the company when the existing shareholders of the company or the public do not purchase the securities offered to them. So it is said when the existing shareholders and the public do not subscribe, do not purchase the shares of the company, the securities of the company, those are subscribed by the underwriter. This is known as underwriting agreement. So there is a risk as per law. If the subscription is not at least 90% of the offer amount, then all the application money needs to be refunded. बोलते हैं अगर ये जो सब्सक्रिप्शन है वो एटलीस्ट 90% ऑफ द ऑफर अमाउंट नहीं है तो सारा एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा. सो टू अवॉइड द रिस्क ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन जितना हम शेयर्स चाहते हैं कि सब्सक्राइब हो, परचेज हो, उससे कम हो रहा है. इफ द अंडर सब्सक्रिप्शन इज नॉट एटलीस्ट 90%, so if the if the subscription is not at least 90%, अगर सब्सक्रिप्शन 90% एटलीस्ट नहीं है तो सारा जो पैसा मिला है, बाकी जो पैसा मिला है, इंटरेस्ट मिला है पब्लिक का, existing shareholders का towards the subscription of shares, उन सबका application money has to be refunded, given back. To avoid the risk of under subscription and refund, companies may seek the help of the underwriters. तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए what does the company do? They appoint underwriters if the whole or part of the securities of the company is not applied for by the public, the underwriter themselves take the balance. मतलब these underwriters, they guarantee minimum subscription. जितना minimum subscription होना चाहिए उतना वो subscription करवा के देंगे. That assurance is given by the underwriters. If they are not able to sell so many shares which are required by law,
to continue with the issue of shares. If it is not sufficient, the balance amount is subscribed by the underwriters themselves. वो लोग खुद वो बचा हुआ बैलेंस वाला शेयर जो चाहिए ये इशू को कंटिन्यू रखने के लिए उतना शेयर्स दे themselves will purchase सब्सक्राइब. सो ये कभी ये रिस्क ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं होना चाहिए. इसलिए व्हाट डज द कंपनी डू, दे अपॉइंट द अंडरराइटर्स. Now, the underwriter may be an individual, maybe a partnership, or maybe a company. So, underwriting services have been traditionally provided by financial institutions, banks, brokers who are members of the stock exchanges, merchant bankers, mutual funds, and persons with adequate financial capacity. The prominent institutions that act as underwriters are Industrial Finance Corporation, Industrial Credit and Investment Corporation of India, Life Insurance Corporation. These are the traditional these are the prominent institutions that act as underwriters. So some examples of underwriters क्या है? Industrial Finance Corporation, Industrial Credit and Investment Corporation of India, Life Insurance Corporations. So these are some of the examples of prominent prominent underwriters, prominent institutions that act as underwriters. So, and it is also, according to the Companies Act, it is also necessary that when any issue of shares or debentures is underwritten, the name of the underwriters and the opinion of the directors that the resources of the underwriters are sufficient to discharge their obligations is disclosed in the prospectus. So we have seen I have discussed some of the examples of important prominent underwriters and कौन underwriters बन सकते हैं. Underwriters may be individual, underwriters may be partnership, underwriters, 1 minute. Underwriters may be individual, underwriters may be partnership or company. So underwriting services कौन provide करते हैं? Traditionally it was provided by financial institutions, banks, brokers who are members of stock exchanges, merchant bankers, mutual funds, and persons with adequate financial capacity. Now, let us understand what do you mean by a underwriting commission. Now, what is this underwriting commission? We have seen that underwriting is an agreement. जहाँ पे अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में क्या दिया रहता है कि अगर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है या पब्लिक जितना सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए वो अगर सब्सक्रिप्शन नहीं होता तो दैट नंबर ऑफ शेयर्स विल बी सब्सक्राइब्ड बाय द अंडरराइटर, दैट इज देयर इन द एग्रीमेंट. एंड नाउ ये क्यों करते हैं वो, उनको क्या इंटरेस्ट मिलेगा, that what is their interest, what will they get if they do this? So they will get the underwriting commission. So what is the meaning of underwriting commission? The consideration payable to the
underwriters for underwriting the issue of shares or debentures of a company is known as underwriting commission. मतलब जो इनको अंडरराइटर्स को शेयर्स और डिबेंचर्स को वो लोग खरीदते हैं, अंडरराइट करते हैं, उसके लिए जो उनको बदले में मिलता है, दैट इज नोन एज अंडरराइटिंग कमीशन. That is known as underwriting commission. So, according to Companies Act 2013, Section 46 of the Companies Act 2013 provides that a company may pay commission to any person in connection with the subscription of its securities, whether absolute or conditional, subject to the following conditions. सबसे पहले अगर हम the payment जो हम पे करते हैं, such commission shall be authorized in the company's articles of association. Means there should be the payment of such commission, जो हम कमीशन पे करने वाले हैं, जो हम कमीशन पे करने वाले हैं, that shall be authorized in the company's articles of association. And कमीशन जो है may be paid out of the proceeds of the issue. जो हमें इशू में पैसा मिलेगा, शेयर्स बेच के जो पैसा मिलेगा, हम वो कमीशन वहां से पे कर सकते हैं, या तो हम कंपनी का प्रॉफिट्स यूज करके पे कर सकते हैं. So, ये अंडरराइटिंग कमीशन हम कहाँ से पे करेंगे? हम पे करेंगे ये शेयर्स को बेच के जो हमें पैसे आते हैं उससे, या तो कंपनी के प्रॉफिट से, या दोनों से. Is my voice audible to everyone? Is my voice audible to everyone? So कहाँ पे as per the Companies Act 2013 क्या है? ये कमीशन का ऑथराइजेशन होना चाहिए कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में. एंड कहाँ से पे कर सकते हैं ये कमीशन? फ्रॉम द प्रोसीड्स, मनी जो मिलता है शेयर्स को बेच के, सिक्योरिटीज को बेच के, या तो कंपनी के प्रॉफिट्स, जो कंपनी के पास प्रॉफिट है वो यूज करके, या तो दोनों यूज करके. And as per the Companies Act 2013, they say ये जो कमीशन है, ये the rate of commission paid or agreed to be paid shall not exceed in the case of shares. शेयर्स के केस में ये जो मैक्सिमम कमीशन है जो हम पे कर सकते हैं, that is 5% of the price at which the shares are issued. तो जो शेयर्स के अगर in relation to shares जो maximum commission है, it should not exceed 5% of the price at which the shares are issued, or a rate authorized by the articles of association, whichever is less. तो या तो 5% या तो आर्टिकल्स में जो रेट मेंशन है दोनों में से जो कम है वो रेट हम अलाउ करेंगे कमीशन के लिए. और इन केस ऑफ डिबेंचर्स क्या रहेगा रेट? रेट नॉट एक्सीड 2.5% of the price at which the debentures are issued, or as specified in the company's articles of association, whichever is less. मतलब शेयर्स के लिए मैक्सिमम कमीशन है 5% एज पर कंपनीज एक्ट 2013, और डिबेंचर्स के लिए मैक्सिमम कमीशन है 2.5%, या फिर ये दोनों के लिए आर्टिकल्स में जो भी परसेंटेज है वो भी ध्यान में रखना, दोनों में से जो कम है हम वो रेट यूज करेंगे. नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. According to SEBI or Ministry of Finance, the maximum rate of underwriting commission
क्या है, इक्विटी शेयर्स के लिए इट इज 2.5%, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए और डिबेंचर्स के लिए रेट है अप टू अमाउंट अप टू 5 लाख के लिए 2.5%। एंड यहाँ पे एक और कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं ऑन अमाउंट डिवॉल्विंग ऑन अंडर राइटर्स। ना व्हाट डू यू मीन बाय डिवॉल्विंग? डिवॉल्विंग का मीनिंग होता है अगर अंडर राइटर्स को इतना शेयर्स आपको सब्सक्राइब करना है, ऐसे आपको डिवॉल्व मीन्स ये आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन या आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन मिला है फ्रॉम द कंपनी कि इतना शेयर्स यू विल हैव टू परचेज। सो वो सिचुएशन में इट इज 2.5। एंड अगर आप पब्लिक सब्सक्रिप्शंस के ऊपर अंडर राइटिंग कमीशन है तो आपको 1.5% कमीशन मिलेगा टू द शेयर्स विच हैज बीन सोल्ड टू द which has been sold to the public, उस पे कमीशन 1.5%। एंड वो शेयर्स जो कि आपको कंपनी ने परचेज करने को बोला। सी अंडर राइटर, व्हाट डज द अंडर राइटर डू? ही सेल्स द शेयर्स इन द पब्लिक, तो वो शेयर्स को सेल करने में ट्राई करता है। तो जो शेयर्स पब्लिक को सेल किया उस पे कमीशन, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर जो सेल किया उस पे कमीशन 1.5% मिला अप टू अमाउंट ऑफ 5 lakhs। एंड जो शेयर्स कंपनी ने बोला आपको परचेज करना है उस पर अंडर राइटर को 2.5% का कमीशन मिलता है। So चाहिए तो what I will do, this table is there which I will just show all of you. Just give me some time. In the later part of the lecture, what I will do, I will share this table in front of you so that it is clear to all of you. ये table I will share in front of you. Now normally as per Companies Act maximum percentage 5% है और as per SEBI it is 2.5. So now next इसका कंप्यूटेशन कैसे करना है? इसका कंप्यूटेशन बोलते हैं कि एक चीज ध्यान में रखना है कि अंडर राइटिंग कमीशन किस पे नहीं मिलेगा। नो अंडर राइटिंग कमीशन will be paid, no underwriting commission will be payable on the shares taken up by the promoters, on the shares taken up by the promoters, एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, बिजनेस एसोसिएट्स एक्सेट्रा। मतलब ये तो अगर कोई कंपनी के प्रमोटर ने शेयर लिया है, कंपनी के एम्प्लॉइज को शेयर मिला है, डायरेक्टर्स को, कंपनी के डायरेक्टर्स को, ये कंपनी के जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं उनको जब शेयर्स, उनको जो पेएबल शेयर्स है उस पे अंडर राइटिंग कमीशन नहीं पे होगा। मीन्स ये तो कंपनी से रिलेटेड शेयर्स है तो ये इसके ऊपर अंडर राइटर का कोई हार्डवर्क नहीं है। सो अंडर राइटर को कमीशन विल नॉट बी पेएबल ऑन द शेयर्स टेकन अप बाय द प्रमोटर्स, एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, बिजनेस एसोसिएट्स एक्सेट्रा। सो नाउ next one, see underwriters. Now let us see who are the underwriters. Underwriter means a person who engages in the business of underwriting of an issue of securities of a body. So a person who engages in the business of underwriting. Underwriting क्या है मैंने तुम लोग को बताया। Underwriting means what happened, this is an agreement where the underwriter will subscribe to the securities of which has been purchased by existing shareholders
और द पब्लिक, जिन्होंने जो शेयर्स को नहीं परचेज किया उसको अंडरराइटर्स हैव टू परचेज। सो यहाँ पे बोलते हैं जो अंडरराइटिंग का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये अंडरराइटिंग का जो बिजनेस है, वो जो बिजनेस को एंगेज करता है, अ पर्सन हु एंगेजेस इन द बिजनेस ऑफ अंडरराइटिंग of an issue of securities is known as a underwriter. So ऐसा है कि underwriter कोई भी बन सकता है, ऐसा है क्या? No person can act as underwriter unless he holds a certificate granted by SEBI. So if you want to act as an underwriter, you should hold a certificate granted by SEBI. A person can obtain such certificate if he has necessary इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक ऑफिस स्पेस है, इक्विपमेंट है, मैन पावर है, कि वो अपने ड्यूटीज को बराबर तरीके से डिस्चार्ज कर सकता है, और उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस है इन अंडर राइटिंग, मतलब उसने काम किया है किसी के अंडर में, so at least he has in his employment minimum 2 persons who have the experience in undertaking। मतलब या तो उसके पास पास एक्सपीरियंस है अंडर राइटिंग का, या तो उसके पास लोग हैं, एटलीस्ट मिनिमम 2 लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस है अंडर राइटिंग का, तो वो एक तो पहला क्या क्राइटेरिया है, ये सर्टिफिकेट किसको भी सेबी नहीं देगी, एक तो सेबी से सर्टिफिकेट लेना है, एंड ये सर्टिफिकेट सेबी विल नॉट गिव टू ईच एंड एवरीवन। इसके लिए कुछ कंडीशंस है, जैसे कि एडिक्वेट ऑफिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, व्हाट शुड बी देयर, infrastructure। Now what do you mean by infrastructure? Means adequate office space होना चाहिए, equipment, man power होना चाहिए, एंड पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडर राइटिंग का। या तो आपको नहीं है तो आपके अंडर में एटलीस्ट 2 लोग तो हो जिसको पास एक्सपीरियंस हो अंडर राइटिंग का, एंड नेटवर्थ ऑफ मिनिमम 20 lakhs, उसके पास उतना कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट होना चाहिए मिनिमम 20 lakhs का। बोलते हैं however a stock broker or merchant banker holding a valid certificate of registration issued by SEBI is not required to obtain separate certificate for underwriting। Means if a stock broker or a merchant banker has a valid certificate which is issued to them by SEBI, तो उनको ये सर्टिफिकेट लेने का जरूरत नहीं है, अंडर राइटिंग का सेपरेट सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट वन इज अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। So every underwriter shall enter into an agreement which with each body कॉरपोरेट। मतलब आपको क्या करना, अगर आपको अंडरराइटर है तो आप एक एग्रीमेंट साइन करते हैं विद द कंपनी कि आप यू आर द अंडरराइटर अपॉइंटेड फॉर द फॉलोइंग सेल ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट आपको साइन करना पड़ता है दैट for the issue you are being appointed as the underwriter। एंड आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकता है कि आपको आपका क्या करना है, यू विल हैव टू सी दैट द इशू इज बीइंग सब्सक्राइब्ड, और आपको ये भी है अंडरराइटर इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता तो द अंडरराइटर हैज टू purchase the balance amount। So you have to undergo your responsibilities properly, efficiently as being the underwriter। एंड एक और चीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरराइटर का, अंडरराइटर शैल नॉट डिराइव इन एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स from underwriting the issue other than the commission or brokerage payable under an
एग्रीमेंट फॉर अंडरराइटिंग, मतलब ये कमीशन या ब्रोकरेज के अलावा उसको और कोई बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। सो ध्यान में रखना है कि ही इज नॉट डूइंग इन इलीगली, ही इज नॉट सेलिंग द शेयर्स, मतलब यहाँ पे उसे वो चीज ध्यान में रखना है, वॉट एवर ही विल रिसीव विल ओनली बी हिज कमीशन, नॉट एनीथिंग एल्स, और कोई बेनिफिट नहीं। And the total underwriting obligation under all underwriting shall not exceed 20 times the net worth। तो हमारा जितना भी नेटवर्थ है उससे उसके 20 टाइम्स से ज़्यादा हमारा अंडरराइटिंग नहीं हो सकता। एंड now there is sub underwriters, who are sub underwriters? सब अंडरराइटर, अगर अंडरराइटर को लग रहा है कि वो ये रिस्क अंडरराइटिंग का रिस्क अकेला नहीं बेयर कर सकता, इफ द अंडरराइटर वांट टू स्प्रेड द रिस्क ऑफ सब्सक्रिप्शन, मतलब in order to spread the risk of under subscription, the main underwriter may appoint सब underwriters। लेकिन इनको जो कमीशन देना है ये सब उसको जो कमीशन मिल रहा है उसको उसमें ही पैसे सब अंडरराइटर्स को भी देना पड़ेगा। एंड कंपनी विल नॉट बी लाइबल टू एनीथिंग, बस वो कंपनी से डिमांड कर सकता है कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा आई वांट for that, for paying the under सब अंडरराइटर्स। सो सब अंडरराइटर्स को अपॉइंट करने का किसका कौन कर सकता है? जो मेन अंडरराइटर है जिसको कंपनी ने अपॉइंट किया है। अगर उसको ऐसा लगता है दैट ही विल नॉट बी एबल टू बेयर द रिस्क, ही मे अपॉइंट सब अंडरराइटर्स। नाउ ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स आर डिफरेंट। ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स आर डिफरेंट। ब्रोकर्स क्या करते हैं? दे ओनली प्रॉमिस और ट्राई टू सेल द सब्सक्रिप्शन टू द शेयर्स और डिवेंचर्स इशूड। वो लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि अगर उनका शेयर सेल नहीं हुआ तो वो लोग सेल करें, वो लोग खुद खरीदेंगे शेयर्स को, ऐसा ब्रोकर्स कोई प्रॉमिस नहीं करते। ब्रोकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो ओनली टू the broker's responsibility is to only only help in the sales of the shares। वो कोई responsibility नहीं लेता that if he fails to sell that promised shares he will buy those shares, ऐसा कोई responsibility is not there with the broker। And next one, managers to issue। So company can appoint one or more individuals or institutions to manage the issue of its shares। shares का issue मतलब क्या? They are responsible for the issue right from the planning stage to the closing all formalities related to the issue। मतलब ये लोगों का क्या काम है कि कंपनी को और भी काम है, लेकिन ये शेयर्स का पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लानिंग टू द एग्जीक्यूशन सारा हेल्प मैनेजर्स टू इशू प्रोवाइड करेंगे फॉर द सेल ऑफ फॉर द इशू ऑफ शेयर्स। तो ये लोग फ्री में नहीं करेंगे, दे में they may be entitled to the commission। The commission payable to issue manager would be calculated at 5% for issues up to 5 crore and 2% for issues valued above 5 crore। So इनको क्या कमीशन मिलता है? अगर 5 crore तक है शेयर इशू तो इनको 5% का कमीशन मिलता है, लेकिन अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो इनको 2% का कमीशन मिलता है। Now last one is types of underwriting। So there are certain types of underwriting। First one is open or conditional underwriting। So under this type क्या क्या टाइप के underwriting हो सकते हैं? Under this type of agreement, the underwriter agrees to take up agreed proportion of shares not
टेकन अप बाय द पब्लिक। तो यहाँ पे जो पब्लिक को जो नहीं शेयर सेल कर पाए, वो दे प्रॉमिस टू टेक अप दोस शेयर्स। तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी है ये कंडीशनल है, कंडीशन के ऊपर है कि अगर दे आर एबल टू शेयर सेल द शेयर्स प्रॉमिस, दे विल नॉट परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब यहाँ पे कंडीशन है, इतना शेयर सेल करके देंगे, अगर इतना सेल नहीं हुआ तो they will take up the shares which has not been taken up by the public। फिर नेक्स्ट वी हैव फॉर्म अंडरटेकिंग। यहाँ पे द लाइबिलिटी इज लाइक कि जितना here under this agreement the underwriters agrees to take up a specified number of shares irrespective of the number of shares subscribed by the public ने जितना भी शेयर सब्सक्राइब करने दो, यहाँ पे the underwriter has to subscribe specific number of shares। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, in any case the underwriters have to subscribe the specified number of shares। full undertaking मतलब क्या? if the whole of the issue of shares or debenture of the company is underwritten, it is known as full or complete undertaking। यहाँ पे पूरा शेयर्स का सेल करने का जिम्मेदारी कंपनी ने अंडरराइटर को दिया है। फुल अंडरटेकिंग मतलब ये कंपनी का पूरा शेयर जो या डिबेंचर्स जो सेल हो रहा है, ये पूरा का पूरा सेल करने का जिम्मेदारी अंडरराइटर को दिया है। पार्शियल अंडरटेकिंग मतलब क्या? ओनली अ पार्ट ऑफ द इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर ऑफ द कंपनी इज अंडररिटन, इट इज सेड एज पार्शियल अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे what happens in case of partial undertaking, and sorry, in case of partial underwriting, the company is treated as underwriter for the remaining part of the issue। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 शेयर्स है, हमने 100 में से 50 शेयर सेल करने का जिम्मेदारी अंडरराइटर को दिया, तो इसको पार्शियल अंडरराइटिंग बोलते हैं। तो रिमेनिंग 50 शेयर्स को कौन सेल करेगा? वो कंपनी को सेल करना है। तो रिमेनिंग शेयर्स के लिए किसके ऊपर अंडरराइटिंग का जिम्मेदारी आता है? कंपनी के ऊपर। सोल अंडरराइटिंग मतलब ओनली the underwriting may be done by a single underwriter। sole underwriting means what? The underwriting will be done by a single underwriter। joint underwriting यहाँ पे नाम से पता चलता है। the underwriting may be done by many underwriters in an agreed ratio। joint underwriting मतलब more than one underwriters, और उनमें कैसे डिवाइड होगा? कितना शेयर्स कौन अंडरराइट करेगा? ऑन बेसिस ऑफ अ रेशो। सोल मीन्स ओनली वन अंडरराइटर। Then we have marked applications and unmarked application। marked applications मतलब ये वो applications है जिसपे अंडरराइटर का नाम थप्पा बोलते हैं ना, दैट ये शेयर्स को ये अंडरराइटर ने, जब एक से ज्यादा अंडरराइटर्स होते हैं ना, तो ये मार्क्ड एप्लीकेशंस आर वेरी इजी टू डिसाइड, बिकम्स वेरी कन्वीनियंट टू डिसाइड कि कौन से अंडरराइटर को कितना कमीशन देना चाहिए। जब एक से ज्यादा अंडरराइटर होते हैं तो किसने कितना शेयर सेल किया, इसको समझने के लिए मार्क्ड एप्लीकेशन इज वेरी कन्वीनियंट। बिकॉज मार्क्ड एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं? हम मार्क करते हैं कि ये एप्लीकेशंस को कौन से अंडरराइटर ने सेल किया। देयर इज अ स्टैंप ऑफ द अंडरराइटर ऑन द शेयर कि ये अंडरराइटर ने सेल किया। तो उस एप्लीकेशंस विच आर स्टैम्प्ड विद द नेम ऑफ द अंडरराइटर आर नोन एज मार्क्ड एप्लीकेशंस। तो क्या बोला? जिसमें स्टैम्प है अंडरराइटर का कि उसने ये अंडरराइट किया है, सेल किया है ये शेयर को, डिबेंचर को, दोस एप्लीकेशंस आर नोन एज दोस आर नोन एज मार्क्ड एप्लीकेशंस। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस मतलब क्या?
दिस डू नॉट बैक द स्टैम्प ऑफ द अंडर राइटर, जिसमें अंडर राइटर का कोई स्टैम्प नहीं है, उसे हम बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट किसको मिलेगा? कंपनी को, क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं है कि कौन से अंडर राइटर ने इसको सेल किया है, ऐसा कोई मार्क नहीं है, उसको बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और जिसमें अंडर राइटर का मार्क होता है, स्टैम्प होता है, उसे हम बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। सो इसके साथ हमने ऑलमोस्ट थ्योरी कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल सम्स। थैंक यू वेरी मच एवरी